अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद शहर आने वाले दिनों में 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मरकज बन जाएगा। हाईटेक सिटी में मुनक़िदा एमटेक एक्सपो से वजीर केटीआर का खिताब। अमरा राजा बैटरीज तेलंगाना में करेगा 9,500 करोड़ की सरमायाकारी। महबूबनगर के डीवीटी पल्ली में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगा कायम। वजीर केटीआर ने कंपनी के साथ एमओयू पर किए दस्तखत। 5 दिसंबर को होगा बंसीलाल पेट की तारीखी सीढ़ियों वाली बाउली का इफ्तिताह। वजीर तलसानी ने म्युनिसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा किया मुआयना। दो ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स ने रकम की तारीख। उस्मानिया हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हुआ तकर्रुर। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक कांग्रेसी वजीर आला मर्री चिन्ना रेड्डी की आज 26वीं बरसी। मर्री शशिधर रेड्डी के हमरा बीजेपी कायदीन ने पेश किया खिराज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आईटीओ सनत केटी रामाराव ने आज जुमे को कहा कि हैदराबाद शहर आने वाले दिनों में 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मरकज बन जाएगा। वजीर केटीआर ने हैदराबाद हाईटेक सिटी में मुनक़िदा एमटेक एक्सपो से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने बुनियादी तौर पर 3D प्रिंटिंग और इनोवेशन पर तवज्जो मरकूज की है। केटीआर ने कहा कि 100 से ज़ायद गैर मुल्की सनतें, 50 से ज़ायद स्टार्टअप्स, 15 से ज़ायद नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स और 3,000 से ज़ायद नुमाइंदे अगले 2 रोज़ तक इस एक्सपो में शिरकत करेंगे। वज़ीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में एरोस्पेस, डिफेंस, तिब्बी आलात और दीगर सहूलियात के मराकज़ की तरक्की तेज़ी से जारी है और तेलंगाना मुल्क की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली रियासतों में से एक है। Guidance, the center has evolved well in terms of onboarding strategic partners, drafting a clearly defined roadmap and charter, attracting talented human resources, and getting all major global players excited to explore Hyderabad as a future destination for expansion within India. The center, in partnership with the industry, has worked hard to promote awareness in the country, enable more users to adopt additive technologies, skill development of identified resources, and initiated establishing guidelines and standards forming the backbone for growth of the sector in our country. NCAM is managed by Emerging Technologies Wing of Telangana government, which always ensures that path-breaking technologies are given their due attention and programs are undertaken as per our framework, as per the requirements of the market. Telangana government has undertaken several projects that leverage emerging technologies, and they have always been the first of its kind of projects in India. And each of these projects are undertaken with the spirit of startups, industry as a partner and not just as a service provider. From quick approvals to rapid brainstorming and problem-solving sessions, the government has always acted as an agile corporation. In addition to these projects, the government has always put in dedicated efforts in overall development of the ecosystem and enabling innovation and growth for the emerging technologies. Since the ecosystem mandate is larger, the government has been setting up dedicated institutions in partnership with industry bodies to augment our capacities in these programs. Now, we see 3D printing as a prime focus area over the next decade or so. The 3D printing industry, in terms of hardware, software, as well as post-processing equipment, is at an inflection point of accelerated growth. With the national reforms supporting the increased participation of the private sector in 3D printing industry, the Telangana state shall be supporting the innovation that is bound to occur. भारत की मारूफ ऑटोमोटिव बैटरी मैन्युफैक्चरर अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड भी तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आया है। अमरा राजा ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो ज़िला महबूबनगर के डीवीटी पल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगा।
इस ज़िमन में अमरा राजा ग्रुप और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए। तेलंगाना के वजीर IT और सनत KT रामाराव और अमरा राजा ग्रुप के डायरेक्टर गल्ला जयदेव ने इस तकरीब में शिरकत की। वाज़ेह हो कि इस MOU के तहत रियासत में लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री कायम की जाएगी। रियासत में 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का अमरा राजा ग्रुप ने ऐलान किया है, जिससे 4,500 लोगों को रोजगार के मौके फराहम होने की उम्मीद है। And that is now allowing us to attract large-scale investments in the new and emerging technologies such as sustainable mobility. Now, we rank among the top states in our ability to attract extremely large-size investments, particularly in manufacturing. With Amar Raja's lithium-ion cell manufacturing plant in Divitipalli, Mehboob district, Telangana becomes one of the very few regions in the world to host an advanced cell chemistry gigafactory. We are now confident that this project by Amar Raja will act as a catalyst and an anchor and has the potential to spur further development of a comprehensive EV and advanced cell chemistry ecosystem in Telangana, creating large-scale manufacturing hub, creating many direct and indirect jobs. And with our progressive EV adoption policy, plus our ability to provide 24/7 electricity, we aim to become the most electrified state in mobility in India. I am very, very impressed with Amar Raja's vision of bringing high-tech manufacturing to rural communities. It takes guts, it takes courage to make a statement that we will ensure that the rural areas, the tier 2 towns also will develop on par with India's metros and globally, in a globally competitive situation. वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने आज शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर KTR ने KPHB कॉलोनी फेज 7 में तामीर किए गए इंडोर शटल कोर्ट का इफ्तिताह किया। इसी तरह वज़ीर KTR ने कुकटपल्ली हल्के में मौके बल्दी की जानिब से मोइन तालाब की रिटर्निंग वॉल, स्ट्रॉम वाटर नाला, आइडियल तालाब और HIG पार्क के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर KTR के दौरे के मौके पर मुकामी रुकन असम्बली, JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाक़ई क़दीम तारीखी सीढ़ियों वाली बाउलियों के तज़ीन नौ के काम जारी हैं। आज जुमे के रोज़ रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा बंसीलाल पेट में वाक़ सीढ़ियों वाली बाउली के तज़ीन नौ के कामों का जायज़ा लिया। इस बाउली का 5 दिसंबर को रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत के आसार क़दीमा का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आने वाली नस्लों के सामने पेश करना है। गौरतलब है कि ये बाउली दौरे निज़ाम में उस वक्त के लोगों की पीने के पानी की ज़रूरियात के लिए बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस इलाके को सयाहती मुकाम बनाने के ख्याल से सीढ़ियों वाली बाउली के खुर्ब जवार में कई तरक्याती और तामीराती काम किए गए हैं। अरविंद गारू HMDA प्रिंसिपल सेक्रेटरी गारू మరి వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కల్పన గారితో మాట్లాడి ఒక్కసారి ఇక్కడ విజిట్ చేద్దామని మరి విజిట్ చేయడమే కాకుండా ఆ రోజే డైరెక్షన్ ఇచ్చి మరి వర్క్ స్పీడప్ కావడం జరిగింది। మీకు చూస్తే లాస్ట్ ఆగస్టులో స్టార్ట్ చేశారు, అంటే ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఒక నెలలోనే మరి అద్భుతాలన్నీ మీ కళ్ళ ముంగట కనిపిస్తున్నాయి। కాబట్టి మనకేందంటే ఒక చరిత్ర, మనము చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం చాలా విషయాలని। ఈరోజు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో మరి ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకొని ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలు కట్టింది ఇక్కడ స్థానికంగా బన్సిలాల్పేట, జీరా పరిసర ప్రాంతాలకు మంచినీటి అవసరాల కోసం కట్టినటువంటి బావి। బట్ కాలక్రమేణా ఏంటంటే మనం ధ్వంసం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి। దీన్ని పునరుద్ధరణ చేయాలంటే ఎంత కష్టపడవలసిందో మరి ఈరోజు డబ్బు క్రైటీరియా కాకుండా మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి పూర్తి బాధ్యత వహించినటువంటి अरविंद गाరికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 9,000
168 मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दरखास्तें इस माह की 23 तारीख से 12 जनवरी तक कबूल की जाएंगी। जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑडिटर और वार्ड ऑफिसर की मुलाजमतें पूरी की जाएंगी। इम्तिहानात अप्रैल या मई में मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। TSPSC सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन ने कहा है कि मुकम्मल तफसीलात TSPSC की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। ग्रुप 4 में बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज से मुताल्लिक़ पोस्टें हैं। 6,859 जूनियर असिस्टेंट की मुलाजमतें, 1,862 वार्ड ऑफिसर की, 1,245 पंचायत राज डिपार्टमेंट की मुलाजमतें, 429 जूनियर अकाउंटेंट की और 18 जूनियर ऑडिटर की पोस्टें हैं। 2 ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स ने तेलंगाना के तारीखी सरकारी दवाखाना उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नौकरी हासिल करते हुए तारीख रकम की है। प्राची राठौड़ और रूथ जॉन पालकोलया रियासत में सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाली पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स बन गई हैं। दोनों को गुज़िश्ता हफ्ते मारूफ अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात किया गया था। इसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से सरकारी शोबे में तकर्रुरियों के मामले में दूसरों के साथ मसावी सलूक करने की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर दोनों ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स ने समाजी अखराज और इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करते हुए सरकारी नौकरी फराहम करने पर रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मैं MBBS एंड एमरजेंसी मेडिसिन कर चुकी हूँ फ्रॉम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आदिलाबाद से। आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांस वुमेन और मैं अभी फ़िलहाल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर रही हूँ। जी, आपकी जर्नी किस तरह? नहीं तो बहुत बुरी रही थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि कुछ करके दिखाना है ज़िंदगी में, एंड वो एक ख्वाहिश के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। लाइक फैमिली से दूर, सोसाइटी में सब लोगों के ताने सुनना, गालियाँ सुनना, उन लोगों की बुरी नज़र से बचना, ये एक्चुअली कोई भी जंग से कम नहीं था मेरे लिए। बट सिर्फ मन में एक ही ख्वाहिश थी कि चलो कुछ करके ज़रूर दिखाना है, तब जाके सबके मुंह पे तमाचा पड़ेगा। इसमें आपकी फैमिली का भी सपोर्ट था? फैमिली का सपोर्ट पहले था लेकिन अभी नहीं है। नहीं रहने का वजह भी एक वजह है, बिकॉज़ कोई माँ बाप नहीं चाहते कि अपने बेटी या बेटा ऐसा बने, तो उनके डिसीजन की रेस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। बस उन लोगों का आशीर्वाद रहे तो बस है, और कुछ भी नहीं। मैं MBBS मेरा कंप्लीट होने के बाद इमरजेंसी मेडिसिन करी थी। हाँ, जब वो टाइम पे मेरा आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करी, बट उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, पीठ पीछे बहुत बात करते थे लोग, लाइक ये कैसा चल रहा है, इसका क्या है एंड ऑल। लेकिन जब टाइम आया कि मुझे लगा अभी ये टाइम है कि मुझे अपना जेंडर रिवील करना है, वो टाइम पे जब मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करी थी, मुझे सीधा बोला गया कि आप कल से प्लीज़ जॉब को मत आइएगा। द ओनली रीज़न लाइक कि वो लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद हम लोग एक ट्रांसजेंडर को एज अ डॉक्टर रखेंगे तो हमारे पास पेशेंट्स नहीं आएंगे, एंड उन लोगों को पैसे का ज़रिया था पेशेंट्स, तो उसकी भी रिस्पेक्ट कर ली है बस। तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस के लिए, सिक्योरिटी गार्ड से लेके IMA तक सब लोग ऐसे देख के हंस रहे थे, एंड ये भी पूछ रहे थे कि मैडम आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पे या फिर आपके कम्युनिटी वाले कोई यहाँ पे एडमिट हो क्या। हमने कोई जवाब नहीं दिया वो टाइम पे, लेकिन जब फर्स्ट डे हम लोग ज्वाइन हुए एंड जो स्टेथोस्कोप एंड एप्रॉन पहन के अंदर आए, वो ही IMA एंड वो ही सिक्योरिटी गार्ड्स गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते मैडम बोलना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब वो इतने अच्छे से हम लोगों को वेलकम करे कि कहीं पे भी एक पर्सन के लिए भी ये नहीं लगा कि लाइक हम लोग सबसे अलग। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी डॉक्टर मर्री चिन्ना रेड्डी की आज 26वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर आज बीजेपी कायदीन, जिनमें मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, राज्यसभा रुकन लक्ष्मण, साबिक वज़ीर आला नामदेला भास्कर और दीगर शामिल हैं, ने मर्री शशिधर रेड्डी के हमरा हैदराबाद के इंदिरा पार्क में वाक़ मर्री चिन्ना रेड्डी की समाधि पर पहुंचकर
उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने कहा कि मर्री चिन्ना रेड्डी वो शख्स थे जिन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की शुरुआत की थी। वहीं नांदेला भास्कर ने कहा कि मर्री चिन्ना रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वो पहले शख्स थे जिन्होंने तश्कील तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की थी। ताहम मौजूदा टीआरएस हुकूमत मर्री चिन्ना रेड्डी की ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम रही है। वाज़ेह हो कि मर्री शशिधर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहकर बीजेपी में शामिल होने के बाद आज ये पहला मौका रहा जब उन्होंने मर्री चिन्ना रेड्डी की बरसी बीजेपी कायदीन के साथ मनाई। 12వ వర్ధంతి పురస్కరించుకొని 26వ వర్ధంతి పురస్కరించుకొని వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా తెలంగాణ వాదులు ప్రత్యేకంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు పార్లమెంట్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ప్రహ్లాద్ జోషి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వారికి నివాళులు అర్పించడము తెలంగాణ సమాజానికి ఒక గౌరవంగా మేము భావిస్తాము। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने हनमकुंडा के एक स्कूल में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात में तालीमी इमदाद तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल कर रही है। उन्होंने इस मौके पर गर्ल्स हॉस्टल में ख़वातीन की मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए इमारत और कंप्यूटर्स की फरहमी के लिए तखमीना लागत की रिपोर्ट तलब करते हुए उसे हुकूमत से फौरी मंजूर करवाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर व दीगर मौजूद थे। Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, whatever it may be. But మనమందరం కూడా ఈ భారత ఉపఖండం జాతి వల్ల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోడ్డు కోసము లేకపోతే ఇది కట్టినాము అది కట్టినాము రోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం. అది కాదు, ఇప్పుడు దేశంలో రాజకీయ చర్చ జరగాలి. ఈ మత దురహంకారాలను వ్యతిరేకించాలని కంపల్సరీ కావాలి. నేను చాలా సందర్భాలు చెప్తున్నా, ఏ విశ్వాసమైనా కానీ ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రత్యేకించి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏ విశ్వాసమైనా కానీ నేను చిన్నతనంలో ఇరాను, ఇరాకు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో अब मालूम है साहब, కాబూల్ में ఇంత బాగుండే కాబూల్, తెహ్రాన్ ఇంత బాగుండే. ఎంపల కార్ల ముస్లిం సోదరులు కూడా అమ్మాయిలు కూడా కార్లు నడిపేది. 75 ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడండి. కానీ అక్కడ కూడా మతం ఇదే వచ్చేసి దురహంకారం వచ్చిన తర్వాత తాలిబాన్లు పుడితే పాపం అక్కడ కూడా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అక్కడ ఇప్పుడు ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా తాలిబాన్ ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు. టెర్రరిజం ఒప్పుకోరు. మతం వేరు, మత దురహంకారం వేరు, విశ్వాసం వేరు. దాని వ్యతిరేకత आरमूर रुकन असेंबली व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज जुमे को आरमूर टाउन के वार्ड 33 में नमस्ते नवनाथापुरम प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के हमरा आज सुबह 33वें वार्ड का दौरा करते हुए अवामी मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। रुकन असेंबली ने इस दौरे के मौके पर गुंडला चेरुऊ में कश्ती रानी के इंतजामात का मुआयना किया। नंदीपेट के वड्डेरा बरादरी के अफराद ने जीवन रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बाद रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने चेपुर गांव में नस्ब करदा कुमरम भीम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इसके अलावा जीवन रेड्डी ने दलित बंधु स्कीम के जरिए मंजूर शुदा 10 लाख रुपए से खरीदी गए कार को आंजहानी आलूरू प्रसाद के बेटे के हवाले की। बाद रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने 33वें वार्ड की तरक्की पर अफसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि आरमूर में
करोड़ों रुपए से तरक्याती और फलाही स्कीमों को नाफिज किया जा रहा है। गुंडला चेरू बहुत जल्द एक टूरिज्म मुकाम बन जाएगा। उनका कहना था कि सीएम केसीआर की क़यादत में आरमूर तरक्की की सिमत गामजन है। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में जिले कामारेड्डी के पिटलम मंडल सेंटर में 30 बिस्तरों के अस्पताल की तामीर के लिए 10 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस तनाज़ुर में रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव हफ्ते को अस्पताल के तामीराती कामों का आगाज़ करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। आज जुक्कर रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने वज़ीर हरीश राव के दौरे के लिए ज़रूरी इंतजामात का मुआयना किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात बताई और पिटलम में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर के लिए सीएम केसीआर और वज़ीर सेहत हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। తన్నీరు హరీష్ రావు గారు రేపు పిట్లం మండల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి 30 పడకల ఆసుపత్రి భవనానికి 10,70,00,000 మంజూరు చేసి భవన నిర్మాణ కార్యక్రమానికి శంకుస్థాపన కోసం విచ్చేస్తున్నటువంటి వారికి పిట్లం మండల ప్రజల తరఫున మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతూ ఎన్నో సంవత్సరాల కలను ఈరోజు సాకారం చేసినటువంటి గౌరవనీయులు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు తన్నీరు హరీష్ రావు గారు నిజంగానే ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा है कि रियासती हुकूमत सरकारी और निजी शोबों में लाखों बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत सरकारी इदारों की निजकारी के नाम पर मुलाजमीन को बेरोज़गार कर रही है। उन्होंने आज जुमे को आदिलाबाद मरकज़ में वाक़ सब्ज़ी मंडी में मुनक़िदा TRS रुकनीत साजी प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए ख़िताब किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की सब्जी मंडी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी के अलावा कई लीडरों और ताजरीन ने रुकन असम्बली जोगू रमना म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी की मौजूदगी में गुलाबी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इससे कबल गांधी चौक से बाजार तक बड़े पैमाने पर एक रैली निकाली गई। इस मौके पर DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी के अलावा अक़लियती क़ायदीन सैयद साजिदुद्दीन, मोहम्मद अशरफ अली, शेख सलीम पाशा, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, शिवा कुमार, अयूब खान और दीगर मौजूद थे। 16 पेंशन देंगे, हम भी ये देंगे, वो फिर क्यों? अभी तुम्हारा 18 राज्यों में तुम्हारा बीजेपी का मुख्यमंत्री है, फिर वहां क्यों नहीं दे रहे? वहां पहले दो 2016 पेंशन महाराष्ट्र में दो। अब बीजेपी का सरकार है, वहां 3016 पेंशन दो, काश्तकार को 10,000 रुपए दे दो, रईत काश्तकार का बीमा करो, वहां पहले भी कर सकते ना, मगर वहां नहीं करते। यहाँ आके हम वो करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई हमारा सीसे आदिलाबाद बंद है, आदिलाबाद सीसे बंद है। अपना KT रामाराव साहब नौजवान का मंत्री, वो इंडस्ट्रियल का मंत्री एक लेटर लिखे, अरे भाई तुम्हारे पास दम नहीं है तो, तुम्हारा सरकार के पास पैसे नहीं है तो हमको दे दो, तेलंगाना राज्य को वो सीसे हम चलाते बोल के हम लेटर लिखे। आदिलाबाद के मोहल्ले खुर्शीद नगर में मुसलमानों की सहूलत के लिए मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना ने फंक्शन हॉल के लिए बाज़ाब्ता जगह फराहम की और TRS पार्टी अक़लियती क़ायदीन की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत से फंक्शन हॉल की तामीर के लिए खुसूसी फ़ंड्स के तौर पर 2 करोड़ रुपयों की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन ने रुकन असम्बली जोगू रमना से इज़हार तशक्कुर किया। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इससे कबल म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी की क़यादत में खुर्शीद नगर में अलॉट करदा फंक्शन हॉल की जगह पर आतिशबाजी की गई और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रुकन असम्बली जोगू रमना की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए जश्न मनाया गया। हम जोगू रमना साहब का आदिलाबाद के तमाम जितने भी इधर के लोग हैं उनकी तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं और ये जो 2 करोड़ रुपए आए हैं इसको जल्द से जल्द जो तो प्रोसेस करके ये फंक्शन हॉल का काम हम चालू करना बोल के MLA साहब से और हमारे जितने भी हम लीडर से हम पूरी कोशिश करके काम को जल्द से जल्द कराएंगे बोल के मैं ये बात बोलते हुए जोगू रमना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी पार्टी TRS माइनॉरिटी लीडर्स की तरफ से हम तहे दिल से जो है जोगू रमना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2 करोड़ रुपए हमको दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुलिस्तान में कई सरकारें गई लेकिन ना ज़मीन दिए ना पैसा दिए, लेकिन 2 करोड़ रुपए सैंक्शन दे के फंक्शन हॉल के लिए हमको
इधर के लोगों के लिए बहुत सहूलत की चीज़ है ये। जितनी तकलीफ़ इधर के लोगों को होती थी, आज कुछ दिनों के बाद ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी और लोग जो है यहाँ पर फंक्शन हॉल में जो है शादियाँ तकरीब जो भी है वो करेंगे बोल के मैं तमाम लोगों को बोलते हुए मैं फिर एक बार जोगिरामा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डीएससी 2008 बीएड के कामयाब सैकड़ों उम्मीदवारों ने आज जुमे के रोज हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक में रियासती हुकूमत से फौरी तकर्रुरात अमल में लाने का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि डीएड उम्मीदवारों को 30% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी की वजह से बीएड उम्मीदवारों को नुकसान पहुँचाए। वो इस मामले में गुज़िश्ता 13 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को हाई कोर्ट ने उन्हें मुलाजमतें फराहम करने का फ़ैसला दिया। इसके बावजूद रियासती हुकूमत इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की हुई है। उम्मीदवारों ने वज़ीर आला KCR से अपील की कि वो उनके मसाइल फौरी हल करें। बसूरत दीगर वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए अपने अफराद ख़ानदान के साथ BR के भवन का घेराव करेंगे। మేము పడుతున్న కష్టానికి గుర్తించి గౌరవ హైకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం మాకు సెప్టెంబర్ 27, 2022 నాడు మాకు జడ్జిమెంట్ అనుకూలంగా రావడం జరిగింది. కోర్టు కూడా మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది సార్. గత గడిచిన రోజుల కొద్ది మేము మంత్రుల వెంబడి ఎమ్మెల్సీలను తర్వాత విద్యాశాఖ అధికారులను కలిసినప్పుడు మీ ఇష్యూ కోర్టులో పెండింగ్ ఉంది, అది పెండింగ్ అయిన తర్వాత పెండింగ్ క్లియరెన్స్ అయిన తర్వాత మీకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు మేము హైకోర్టు నుంచి ఆర్డర్ పొందాం సార్. లీగల్గా మాకు అంత క్లియర్గా ఉంది కాబట్టి దయచేసి మా ఉద్యోగాలు మాకు కల్పించి మీరు తెలంగాణలో ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు. మన గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అండ్ IIIT స్టూడెంట్స్కు T-Hub అనే సాఫ్ట్వేర్ సంస్థను స్థాపించి ఎంతో మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించి మన యొక్క తెలంగాణ బిడ్డలను నిలబెడుతున్నారు. మమ్మల్ని కూడా మా DSC 2008 అభ్యర్థులం 13 సంవత్సరాల నుంచి చాలా 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 ఓసతోటి బాధపడుతున్నాం సార్. మాకు హైకోర్టు తీర్పును మీరు ఇచ్చిన హామీని నమ్ముకొని బతుకుతున్నాం. ఇప్పుడైనా మాకు న్యాయం చేస్తూ మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు న్యాయం చేయగలరని మేము శిరస్సు వంచి మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. सिकंदराबाद महाकाली ट्रैफिक पुलिस ने पासपोर्ट ऑफिस के रूबरू खुसूसी मुहिम चलाते हुए गाड़ियों की चेकिंग की। ट्रैफिक SI शंकर की क़यादत में बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों, ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट ड्राइविंग के मुतालिक चेकिंग के दौरान चालानात किए गए। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में एक खातून की मुबैना खुदकशी का मामला सामने आया है। मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों का कहना है कि शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से शादी के पहले साल से हरासा किया जा रहा था और कल रात उनको फ़ोन आया कि आपकी लड़की ने फांसी ले ली। उनके मंचरियाल से यहाँ पहुँचने तक लाश को भी शौहर और दीगर ने मिलकर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया है। मेरा नाम मोहम्मद आशम है भाई, हाँ, मंचरियाल डिस्ट्रिक्ट चन्नूर गाँव। तो मेरे बच्चे को 2020 में 6वां महीना 23 तारीख को सुल्तान बोलते थे बच्चे का हाफिज़ बाबा नगर में शादी करके दिए। देने के बाद 1 साल के बाद परेशानियाँ शुरू कर। 1 साल होते बच्चा कहीं को नहीं हो रहा, बच्चा कहीं को नहीं हो रहा, यही परेशानियाँ 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद हमारे भाई को भेजा, मैं यहाँ बाहर रहता हूँ, मेरे भाई को भेज के लाले में लाले बोलता ला लिया, लाले के नहीं बचते बोलते बच्चा आके समझा के फिर वापस ला लिया। ला लेने के बाद क्या होगा, ठीक रह रहे समझे, फिर वही गड़बड़ा, फिर बच्ची आई, फिर गई। उसके बाद परसों उन्हें बहन की शादी है, बोलता कुछ करो, बोलते 1 लाख रुपए भी दिया उन लोगों को भाई। हाँ, शादी हो गई, शोभ हो गई, जुमा की हो गई। शोभ होने के बाद क्या करे, सोना जितना सोना दिया वो पूरा रहन में रख लिए। हाँ, सोना रहन में रख लिए, 1 लाख रुपए पूछे वो दे दिया। हाँ, उसके बाद वो पड़ा साथ बोलता रात में 1:30 बजे बच्ची मेरे को फ़ोन करके बोलती बाबा मेरे को जल्दी लेके जाओ। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाह रही हूँ, मेरे को तकलीफ़ है। बोलता ठीक है बेटा, 4 बजे बसा चालू होते मैं आके लेके जाता हूँ। बोला हाँ, 3:30 बजे फ़ोन करके बोल रहे तुम्हारी बच्ची फांसी डाल ली। यासीन उनके भोने साहब यासीन फ़ोन करके तुम्हारी बच्ची फांसी डाल ली। हाँ, आओ तुम लोग जल्दी आओ। 3:30 बजे हम गांव में रहने वाले, यहाँ आज तक लाश भी नहीं रखे, लाश को ले जाके हॉस्पिटल में फेंक दिया। हाँ, हॉस्पिटल में रख दिया, अब तक मैं बच्ची को भी नहीं देखा। हाँ, बच्ची आलिम है भाई, बच्ची आलिम है, उर्दू मीडियम इंटर सेकेंड ईयर करी है उर्दू मीडियम से, बच्ची आलिम भी है। LB नगर के तहत नागोल स्नेहापुरी कॉलोनी में फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक 2 हमलावरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर दुकान के मालिक पर फायरिंग की, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। बादअज़ा वो वहां से सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। मुकामी लोगों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी।
शालीबंडा पुलिस ने 2 ऑटोमोबाइल चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 5 मोटरसाइकिलें जुमला मालिया 2,10,000 रुपए बरामद कर लिए। 1 बजे के टाइम पे हमारे शालीबंडा के डीआई मुनव्वर शरीफ और यहाँ के एसआई हसीना, क्राइम टीम विकास और वेनु, ये चारों मिलके आज व्हीकल चेकिंग कर रहे थे। एक 2 शख्स मोहम्मद इमरान कुरैशी और मोहम्मद बाबा, ये दोनों भी एक गाड़ी पे आ रहे थे। ये दोनों को देखने के बाद थोड़ा सस्पिशियस पे, वो लोगों को बाजू लेके लोग पूछे तो वो लोग जो गलती करे, जो गुनाह करे, वो लोग जो चोरी करे वो लोग कबूल लिए। अब वो लोग कबूलने के बाद फर्दर जो है सो और एक 4 व्हीकल्स भी वो लोग टेफ्ट करे, सो बोले जो 4 गाड़ियां में चोरी करे वो 4 गाड़ियां जो है सो एक बहादुरपुरा का है, एक फलकनुमा का है, एक गांधीनगर का है और जो है सो और एक मैलार दूलपल्ली। ये 5 अपना शालीबंडा का एक केस, पूरा 5 गाड़ियां हैं। ये 5 गाड़ियों को 2,10,000 रुपये कीमत है। ये लोगों को अब फिलहाल कोर्ट को भिजा रहे। अगर ये लोग पहले भी ऑफेंसेस एक ऑफेंडर पे 10-10 केस आए और इसमें से एक ये बाबा बोलने वाला ऑफेंडर जो सो अफजलगंज पुलिस स्टेशन में भी एक केस करके हुए, वो लोगों को वांटेड एक आईना फोड़ के उसमें से 87,000 निकालो उसमें, वो सब भी हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं और कोर्ट को भिजा के वो लोगों को रिमांड को भिजाते। ये जो अच्छा काम करने के लिए ये लोगों को हमारे डीसीपी साहब बधाई दिए और ये लोगों को रिवार्ड भी इंशाल्लाह मिलेगा। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद शहर आने वाले दिनों में 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मरकज बन जाएगा। हाईटेक सिटी में मुनक़िदा एमटेक एक्सपो से वजीर केटीआर का खिताब। अमरा राजा बैटरीज तेलंगाना में करेगा 9,500 करोड़ की सरमायाकारी। महबूबनगर के डीवीटी पल्ली में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेगा कायम। वजीर केटीआर ने कंपनी के साथ एमओयू पर किए दस्तखत। पाँच दिसंबर को होगा बंसीलाल पेट की तारीखी सीढ़ियों वाली बाउली का इफ्तिताह। वजीर तलसानी ने म्युनिसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा किया मुआयना। दो ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स ने रकम की तारीख। उस्मानिया हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हुआ तकर्रुर। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक कांग्रेसी वजीर आला मर्री चिन्ना रेड्डी की आज 26वीं बरसी। मर्री शशिधर रेड्डी के हमरा बीजेपी कायदीन ने पेश किया खिराज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।